Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. And again, best digital learning. I hope you all are fit and fine. It's me, Vinita, as your English trainer, and today we are going to start the second part of In the Kingdom of Fools. As we have already discussed in our previous video, that the chapter The Kingdom of Fools. The Kingdom of Fools, in this chapter, the king and the minister were idiots. They ordered all things to be reversed. They decided to change night into day and day into night. They ordered people to do day's work in night and sleep in the day. Anyone not obeying was to be punished with death. So people, out of fear, did as they were asked to do. This delighted the king and the minister. A guru and disciple see the city. Once a guru and his disciple arrived in the city. They found everyone asleep during the day. No activity was observed. It amazed them. They wandered till evening. Then the people woke up. They started doing their nightly business. Now the two were hungry. They bought some food items. The price of everything was same. This surprised and delighted them. The Guru realized that it was really a kingdom of fools. Then Guru leaves the city, but Dispel remains behind. Why? What is the reason? The Guru decided to leave the city because it was the city of fools. He asked his disciple also to leave the place, but the disciple did not want to do so for cheap food. The Guru advised the disciple that nothing could be predicated of fools, but the disciple didn't care. He remained behind. Time passed on. The disciple ate to his fill. As a result, he became very fat. Then, suddenly, a thief breaks into a rich merchant's house. This was a short incident that was happened in that particular city. So, on one day, a thief broke into a rich merchant's house. He was taking out the stolen things. Just then, the wall of the old house fell on his head. He was killed instantly. The brother of the thief complained to the king about his death. He blamed the owner of the house for his brother's death. Then the owner is summoned. The king heard the king heard the owner is summoned, so the king heard all the things. He accused him of killing the thief, but the owner said that he was innocent. He said the person who built the wall was responsible. He didn't make the wall. The king decided then to summon the bricklayer. The king asked the bricklayer if he had built the wall. He accused him to killing the thief. Before the king could order his death, the bricklayer pleaded innocence. He told the king that he could not concentrate while building the wall. A dancing girl moved in the street, so she was responsible for it. Then dancing girl is summoned. The king charged the dancing girl of killing the thief. The dancing girl said that the goldsmith was responsible for it. She had given
some gold to him. She had to make some jewelry for her. He was lazy. He did not make the jewelry early. So she had to walk up and down the street. So it was the goldsmith's fault. Then the goldsmith and his plea. The king now ordered to summon the goldsmith. The goldsmith replied that there was a wedding in the rich man's house. He had to make jewelry for him, so he could not finish the jewelry of the dancing girl in the time. Then the rich man is summoned before the king. The king declared the rich man to be the murderer. He was none other than only the owner of that same house. But he said that his father had ordered the jewelry. The king consulted his minister. Then he decided that the honor to be punished in his father's place. The king asked a new stake to be made ready for the honor to die, but the honor was very thin. He could not execute it. So now the king was worried about it. Then he ordered to search a man who was fit for the stake. He should be executed. The disciple is in the trouble now. The disciple was found fit for the stake. He was brought to the place of execution. So, till here, though, we have already understand in our previous video. So now, come to the chapter. What have I done wrong? अब जब जैसे सर्वेंट्स ने उस शिष्य को पकड़ा तो उसने कहा कि मैंने क्या गलत किया. आई एम इनोसेंट. मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ. आई एम सन्यासी. मैं सन्यासी हूँ. ही क्राइड. वो चिल्ला रहा है. दैट मे बी ट्रू, बट it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन ये तो राजघराने का ऑर्डर है, आदेश है कि हमें जो स्टेक के लिए फिट होता हो ना, ऐसा मोटा आदमी चाहिए था. सो दे सैट. उन्होंने ये बताया. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. अब जहाँ पे उसको वो सज़ा देनी थी उस प्लेस पे उसको ले गए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड. अब उसको अपने गुरु की बातें याद आई. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ. जब वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट. तो उसने अपने दिल से अपने गुरु को याद किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई. और वो चाहता था कि जो उसका गुरु है वो उसकी आवाज़, उसके चिल्लाने की आवाज़ को, उसके रोने की आवाज़ को सुने, वो जहाँ पर भी है. द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन. अपने नज़र में उसने उस सारे दृश्य को देख लिया कि मेरे शिष्य के साथ क्या हो रहा है. बिकॉज ही हैड सम मैजिक पावर. क्योंकि उसके पास कुछ मैजिक पावर थी. ही कुड सी फार and he could see the future as he could see the present and the past. प्रेजेंट और पास्ट के साथ साथ वो थोड़ा सा फ्यूचर भी देख सकता था, थोड़ी सी दूर की देख सकता था. तो उसने ये सब चीज़ें देख ली. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल. वो अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गया. हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. जिसने अपने आप को इतने बड़े जंजाल में फंसा लिया था सिर्फ और सिर्फ खाने से प्यार की वजह से. नथिंग एल्स. सिर्फ अपने लालच की वजह से. एज सुन एज ही अराइव्ड. जैसे वो पहुंचा, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर. वो अपने शिष्य को बहुत डांटने लगा और उसने कहा, बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए उसे बताया, उसको मतलब कुछ बोला. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर. तब वो अपने किंग के पास गया और उसको बहुत प्यार से उसने बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर. तुमसे बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसिपल. तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो. हु इज़ ग्रेटर. तो बताओ कि बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य.
ऑफ कोर्स द गुरु, गुरु ही है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई संदेश नहीं है, कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो पहले फांसी मुझे दे दो। पुट माई डिस्पल टू डेथ आफ्टर मी, और फिर उसके बाद मेरे शिष्य को देना। देन इट वॉज लिटरली वेरी सरप्राइज्ड टू हियर कि गुरु ऐसे क्यों बोल रहा है। अब गुरु had the magic powers to see the present and past and future also, so he saw everything. So he arrived at once to save his disciple life. So he told his disciple something in a very low voice, we don't know what, but then his disciple understood this. So we can say that this is a guru's trick to save his life. सो देन वाइल द डिस्पल हियर दिस, अब जब वो उनकी बातों को जब उसने सुना, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगन टू क्लैमर, और उसने क्या किया, झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, बहस करनी स्टार्ट कर दी। मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ लेके आए हो ना, तो पहले मुझे ही मारोगे, नॉट हिम, उनको नहीं। देन द गुरु एंड द डिस्पल नाउ गॉट इनटू a flight about who should go first. अब गुरु और शिष्य दोनों के बीच में एक झगड़ा होने लगा कि पहले स्टेक फांसी पर कौन चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब राजा तो इस बिहेवियर से बहुत पजल हो गया कि वाई दे आर फाइटिंग। The disciple and guru now started fighting, and the guru wanted to be die first. The king asked the guru why he wanted to die, because he was very puzzled. That he asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. हमने तो इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि हमें अपने स्टेक के लिए, अपने फंदे के लिए एक मोटा आदमी चाहिए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट। तुम्हें मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे ही मारो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने रिप्लाई किया। वाई, क्यों? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, इस बात में एक राज है, एक रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। आप बुद्धिमान हो तो शायद आप मेरी बात को समझेंगे। मुझे लगता है कि शायद आप मेरी बात को समझ लोगे। अब वो हैरान कि कौन सी बात समझनी है। अब बहुत एक चीज़ देखो कि लड़ रहे हैं वो लिटरली मरने के लिए। वो कहता है कि पहले मुझे मारो और वो कहता है कि पहले मुझे मारो। तो अब ऐसा कैसे क्यों बोल रहे हैं वो? This was the stake of God of justice. The stake was new. It was never used earlier. So whoever died on it first would be born a king in next. Means as a wise man, अब उसने कहा कि शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे। अब उसने कहा चलो ठीक है, बता के देखते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू द डेथ इफ आई टेल यू? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप पहले मारोगे मुझे। आज द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सॉलोमन वर्ड, उसको अपनी जबान दे दी। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको अपने साथ अलग ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शूट, ताकि सर्वेंट्स के कानों में आवाज़ ना जाए। एंड विस्पर टू हिम, और बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए उसे कहने लगा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? कि हम क्यों अभी मरना चाहते हैं? टू ऑफ अस, हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट यू हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे संसार में गए, बट हमने आपके जैसा शहर और आपके जैसा राजा कहीं नहीं देखा। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस,
ये जो स्टेक है, ये फंदा है, ये भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, अभी तक इस पे कोई क्रिमिनल फांसी पे नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn on the king of the country. इस स्टेक पे जो सबसे पहले जो मरेगा वो अगले जन्म में या अपने नेक्स्ट जन्म में दोबारा वो जन्म लेगा देश का राजा बन के। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country. और जो सेकेंड टाइम मरेगा वो फ्यूचर में मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ, हम अपनी इस बोरिंग लाइफ से बहुत मतलब ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू enjoy ourselves as a king and minister for a while. एक राजा और मंत्री की तरह जीवन व्यतीत करना हम भी चाहते हैं। सो नाउ कीप योर वर्ड, तो अब आप अपनी जबान पर रहिए। माई लॉर्ड एंड पुट अस और टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर, तो हमें अब मार दीजिए और मुझे पहले याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब वो राजा तो बहुत गहन चिंतन में चला गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो नहीं चाहता था कि उसका राज्य है उससे खो जाए, इवन कि अगले पड़ाव पे भी, अगले जन्म में भी। सो ही नीडेड टाइम, अब उसे टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, तो उसने क्या किया, ये जो पनिशमेंट देनी थी, सज़ा देनी थी, उसको नेक्स्ट डे तक पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उसने अपने मिनिस्टर से गुप्त में बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आर किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, हमारे लिए ठीक नहीं होगा कि हम अपना राज्य है अगली ज़िंदगी के लिए भी किसी और को दे दें। लेट इस गो ऑन द स्टेक आर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो ऐसे ही करते हैं कि फंदे पर हम लटक जाते हैं और अगले जन्म में राजा और मिनिस्टर बन के दोबारा आ जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, कि जो धार्मिक लोग होते हैं ना, जो साधु महात्मा होते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते। अब उसकी बात पे ना जो सारे मिनिस्टर्स थे वो भी एग्री हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उसने जल्लादों को बोला, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि हम आज रात को ही क्रिमिनल्स को भेज देंगे। सो व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। तो पहले क्या करना, जो सबसे पहले आएगा पहले उसको मार देना, उसको लटका देना, फिर जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको दोबारा दूसरे नंबर पे लटका देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो जेल में राजा और उसके मंत्री पहुंच गए। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, उन्होंने वहाँ जाकर गुरु को और शिष्य को छोड़ दिया। डिस्क्यूज themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servants, अब ये चीज़ उन्होंने पहले डिस्कस कर ली थी अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रमोटली एग्जीक्यूटेड, कि वो फांसी पर किसको कैसे उन्होंने लटकाना है, ये सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया था। सो व्हेन द बॉडीज वर टेकन आउट down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked, अब वो जो बॉडीज बाहर आई निकाली गई, तो उड़ते हुए कबूतर, वल्चर्स, चीलबाज, और लोग भी उनको देखकर बहुत पैनिक हो गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने राजा की और मंत्री की डेड बॉडी रखी हुई देखी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब सब बहुत कन्फ्यूज्ड थे कि ये हुआ क्या। एट नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब एट नाइट दे मॉन्ड, वो बहुत ही मतलब सरप्राइज्ड हुए पूरी रात, मतलब वो एक सदमे में रहे। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और वो अब राज्य के
फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगे. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोग अचानक से गुरु और उसके बारे में, उसके शिष्य के बारे में सोचने लग गए. एंड कॉट अप विद देम, और उनको साथ पकड़ लिया गया. एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव, क्योंकि वो शहर छोड़, बिना किसी को बताए शहर छोड़कर जाने के लिए रेडी हो रहे थे. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन. किसी ने कहा कि हमें एक राजा की और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है. अदर्स एग्रीड, बाकी सब भी एग्री हो गए. दे बैग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. दे बैग्ड, उन्होंने मतलब उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो हमारे जो गुरु और जो शिष्य हैं वो किंग और मिनिस्टर की तरह यहाँ पर रहें. इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोसीड द डिसिपल. शिष्य को मनाने के लिए तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी पड़ी, बट इट टुक लॉन्गर, लेकिन गुरु को मनाने में टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom to the foolish king and the silly minister. और finally वो अब उस राज्य पे उस foolish king की और silly ministers की जगह राज करने के लिए एग्री हो गए. On the condition that they could change all the old laws. सिर्फ इस शर्त पे कि वो सभी कानून, पुराने कानून को बदल देंगे. From then on, तब से ही नाइट वुड अगेन बी नाइट. नाइट थी और जो दिन था वो दिन था. एंड इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये बिल्कुल पहले बाकी दूसरी जगह की तरह बन गया. सो इट मीन्स द किंग डिसाइड्स टू डाई, because the king thought over the whole case and he did not want to lose the kingdom even in his next birth also. So he talked to the minister and the king said that they could go on the stake themselves. Thus they could be reborn as king and the minister again. So they are taken to the stake and executed. Then the guru and the disciple become the king and the minister, because when the dead bodies of the king and the minister was taken out, the people mourned their deaths. उनके मतलब उनको एक सदमा सा लग गया. They discussed the future of the kingdom. अब वो सब परेशान हो गए, भाई अब हमारे तो राजा के साथ ये सब हो गया, तो अब ये क्या फ्यूचर होगा इस राज्य का. तो सडनली some people thought of the guru and the disciple. तो अचानक से कुछ लोगों ने गुरु और उसके शिष्य के बारे में सोचा. They were secretly leaving the city. अब वो सिटी को छोड़कर जा रहे थे. But people saw them. लोगों ने उन्हें देख लिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप ही हमारे सिटी के किंग बन जाओ, मिनिस्टर्स बन जाओ, हमारे सिटी का काम जो है वो अच्छा हो जाएगा. सो डिसिपल जो शिष्य था वो तो मान गया, बट राजा ने एक शर्त रखी. एंड द कंडीशन वॉज कि फ्रॉम देन ऑन we have to change all our old laws. Now the night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dudu. हर किसी चीज़ का प्रॉपर एक रेट प्राइस होगा एंड यू हैव टू पे फॉर दैट. नाइट सोने के लिए होगी और डे काम करने के लिए होगा. सो इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाकी के प्लेस होते हैं. सो at the last it was written that a Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's Folk Tales from India. This is the Kannada version of folk tale and the author was A.K. Ramanujan, and this chapter is take out from folk tales, जो कहानियाँ होती हैं, लोक कथाएँ होती हैं, वहाँ से लिया गया है, from इंडिया के. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वट एक्चुअली इज़ गिवन हेयर, कि कैसे एक राजा अपनी सिर्फ मूर्खता की वजह से अपनी जान गंवा देता है, बिना किसी रीज़न, बिना किसी कारण के,
बिना किसी से कोई संपर्क स्रोत के माध्यम से. So we can say the chapter is very interesting, but we need to understand each and every point very clearly and carefully. I hope you will understand this. We will meet soon in our next video. Till then, thank you. Have a nice day. Kindly like this video, subscribe our channel, and share more and more. Thank you. Have a good day.